नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का सीबी वर्कशीट संख्या 7 और 8 लेकर के उपस्थित हूँ इंग्लिश का। आइए इसमें देखें ये सवाल। ये इसमें आपको कुछ अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। द राइज ऑफ एयर टेम्परेचर नियर अर्थ सरफेस ओवर द पास्ट 1 or 2 centuries is known as global warming. Earth has experienced period of gradual warming and cooling throughout its existence as a result of natural causes. आप एक बार इसको जरूर पढ़ें। सच नेचुरल गैसेज हैव इंक्लूड्स वॉल्केनिक इरप्शन एंड वेरिएशन इन द sun's output. However, scientists have attributed the recent increase in global temperature to human causes, preliminary and release of certain gases into the atmosphere as a result of industrial activities. These gases are known as greenhouse gases. They absorb and trap heat emitted from Earth's surface through a process known as greenhouse effect. Global warming is a part of a more general phenomenon of a climate change. The term global warming and climate changes are often used interchangeably, but they have distinct meanings. In addition to rise in air temperature, climate change encompasses changes in another element of climate. These include variation in precipitation patterns, winds, and ocean current. Another distinction between the terms in the time frame that they describe. Climate change includes changes that have taken place throughout Earth's history. Some of these changes have occurred very slowly over long period of time. Time periods such as hundreds of millions of years. Other, such as global warming, have occurred more over much shorter time periods. The warming trend of recent time is a rapid and ongoing phase of climate. अर्थात ये जो कहना चाह रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग कहना चाह रहा है जो पिछले 1 से 2 शताब्दियों में पृथ्वी का सतह हवा के तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अर्थ पृथ्वी में अपने अस्तित्व के दौरान प्राकृतिक कारणों के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे गर्म होने और ठंडा होने की अवधि का अनुभव किया है। नेचुरल कॉजेज है। ऐसे प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी विस्फोट और सूर्य के उत्पादन में बदलाव शामिल है। इसको आप पढ़ करके आपको आंसर देना है। कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ रिसेंट इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो क्या है इसका प्राइमरी कॉजेज क्या है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज। यहाँ पे लिखा है प्रिलिमिनरी द रिलीज ऑफ सर्टेन गैसेज इनटू एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ग्रीन हाउस रिस्पॉन्सिबल किस तरह से है? ग्रीन हाउस रिस्पॉन्सिबल क्या मतलब ग्रीन हाउस जो होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को और उसको फिर बाहर नहीं जाने देता, यानी दे एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड हीट इमिटेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से जो बाहर निकलने वाली हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर निकलने से उसको रोकता है। तो ट्रैप्ड हीट थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब हीट को फंसा देता है। दीपिका feels that climate change include rises in air temperature only, but her teacher suggested that it encompasses change in other elements of climate also. Pick out of the elements that changes along with the temperature. टेम्परेचर के साथ साथ क्या क्या बदलाव आता है? तो यहाँ पे लिखा है क्लाइमेट चेंजेज इंक्लूडेड दैट टेकन प्लेस थ्रू अर्थ हिस्ट्री। सम दी चेंजेज अकर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए
These includes variation in precipitation patterns, winds and ocean current. तो ये देखिए किस में दिया हुआ है, प्रेसिपिटेशन पैटर्न, विंड एंड ओशियन करंट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्कशीट हम देखते हैं, आठवां, इसमें दिया हुआ है इंग्लिश का आठवां। इसमें रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन एज फॉलो। ये रविंद्रनाथ टैगोर हेलिंग फ्रॉम अ prosperous Bengali family emerged as a polymathic luminary, so causing a brilliancy across various disciplines. His literary power, philosophical insight, artist endeavor, and broader influence resorted deeply within the realms of literature, art, education, and politics during his era. Remarkably, Tagore penned his inaugural poetry collection at a mere 16 years old, unveiling a prodigious talent that would span a diverse array of literacy from including books, play, songs, and essays. These articles embarks on a exploration of Tagore's remarkable life journey and his multi-affected contribution to Indian culture. Even today, Tagore's enduring impact pre-amateurs through the rich uh, tapestry of Indian culture experience influencing not only literature and music but also education paradigms and social reforms movement. His profound words such as the butterfly count not months but moments has a time enough in encapsulate his reverences of life, translate beauty. Though his prolific however, Rabindranath Tagore transcended temporal confines, leaving an indelible imprint on the cultural ethos of both India and the global community, serving a timeless source of inspiration for generations of creative minds and advocate for more इक्विटेबल एंड हारमोनियस वर्ल्ड। एक बार आपको पढ़ना चाहिए जिससे आपको ये थोरोली पढ़ना चाहिए जिससे आपको ये पता चले जो कि ये वर्ड किससे संबंधित है। अब आइए सवाल को देखें। व्हाट आर रविंद्रनाथ टैगोर्स फर्स्ट नोटेबल एकम्प्लिशमेंट, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की पहली जो है एकम्प्लिशमेंट क्या था। तो ये देखिए, रिमार्केबली द टैगोर स्पेंड हिज इनॉग्रल पोएट्री कलेक्शन एट मेयर 16 ईयर ओल्ड। तो ये 16 साल में पोएट्री बुक का कलेक्शन वो कर दिए थे। तो ये आपका ये सी ऑप्शन सही है। विच एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी डिड टैगोर वर्क इन्फ्लुएंस, कौन से सोसाइटी में कौन सा एस्पेक्ट, सोसाइटी का कौन सा एस्पेक्ट में टैगोर्स का प्रभाव है। तो यहाँ पे लिखा है हिज लिटरेसी पावर, फिलोसॉफिकल इंसाइट एंड आर्टिस्टिक शोइंग अ ब्रिलियंस अक्रॉस वेरियस डिसिप्लिन्स। तो ये लिटरेचर, आर्ट, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स इसमें सही आंसर है। व्हाट आर टैगोर्स व्यू ऑन द पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेंडेड इन द पैसेज। यहाँ पे एक लिखा हुआ है द बटरफ्लाई काउंट नॉट मंथ्स बट मोमेंट एंड हैज़ टाइम इनफ। तो ये है मोमेंट्स आर मोर सिग्निफिकेंस देन मंथ, जो आपके पास क्षण है उसको महीने से ज़्यादा वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी सही है। व्हाट डज टैगोर कंटिन्यू टू इम्पैक्ट इंडियन कल्चर टुडे, जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है
थ्रू आउट लिटरेचर, म्यूजिक, एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स सारे पे आधारित है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है जो कि टैगोर्स इंड्यूरिंग इम्पैक्ट प्रीमेच्योर्स थ्रू आउट द रिच tapestry of Indian cultural experience and influence not only literature and music but also educational paradigms and social reforms movement। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट डज द फ्रेज मल्टी अफेक्टेड बॉडी ऑफ वर्क रेफर्स टू। मल्टी अफेक्टेड दैट मीन्स बहुत सारे से संबंधित है, तो टैगर्स डाइवर्स रेंज ऑफ टैलेंट एंड कंट्रीब्यूशन को यहाँ पे संबोधित करता है। ये था आज का मतलब इस हफ्ते का वर्कशीट संख्या 7 और 8। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।